हाँ पता है। दूर अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग। वो देख, नाश्ता भी कर चुकी है, अपना काम जल्दी जेव्हा हात वाटलं छान उठ ना। बिन बोले साले क्यों नहीं उठते तुम लोग? सिद्दीकी, put off your mic. Okay, let's start with our lecture. Good morning, sir. Good morning. So last time we have seen how to calculate determinant of a matrix. We have also seen not only through the first row but also from the second row or third row how we can compute a matrix. The next step of our discussion will be adjoint of a matrix. So for to calculate adjoint of any matrix, we have to perform two steps. The first step is take the transpose of a given matrix and then find the cofactors of the minors. Okay, so here we have given one example. For example, if A is equal to 2 minus 1 3, 4 6 minus 2 5 2 7. So what is the step 1? Step 1 is take transpose of matrix A. So row will become columns, columns will become row. In 12th, I guess you have done like this. You have first calculate the minus and then after whatever matrix you are getting, you are taking the transpose. So पहले लिया तो भी चलता है, कोई problem नहीं होता. So first you take the transpose. A transpose is equal to when you interchange rows and columns. डिस्प्ले नहीं हो रहा है सर कुछ. तेरा नेटवर्क इशू होगा महर्षि. Yes, sir. Display नहीं हो रहा है सर. डिस्प्ले हो रहा है सर, डिस्प्ले हो रहा है. हो रहा है डिस्प्ले, मेरे मोबाइल में भी हो रहा है. सर मैं रिजॉइंड होता हूँ. हाँ ठीक है. Okay, so there are two steps. One is taking the transpose and then calculating the factors. Note that whenever you take cofactors, you have to also take the sign into the consideration. What do I mean? When I first find the cofactors, first cofactor is 46, will keep as it is. Second cofactor A12, if you find the A12, it will become, the answer is minus 13, but here in A12 position you have written plus 13 because second का साइन जो है माइनस होता है, देन थर्ड का साइन प्लस होता है, एज इट इज रखना है. फोर्थ का साइन रिवर्स होगा because entry is A to 1, sum is odd, so entry is even. Next is again minus, प्लस माइनस साइन कन्वेंशन आप हमेशा ध्यान में रखो. So let us take this into the detail. So let's I will just copy paste it. यहाँ पे बहुत शॉर्ट में सॉल्व किया इन्होंने. ओके, सो फर्स्ट क्या करना है आपको, ट्रांसपोज लेना है ट्रांसपोज का. सो ट्रांसपोज भी कॉपी कर लेते हैं. दिस इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स.
So what is A transpose? First row will become column 2 minus 1 3, then 4 6 2, sorry, minus 2, then third row will become third column, that is 5 2 7. Okay, let's calculate the minor. A11, जब A11 निकालते हो तो क्या करते हो? First row and first column will be deleted from the matrix. You will get the matrix 6 minus 2. Sorry, we'll take the transpose of this matrix A transpose. So 6 2, next is minus 2 7. इसका आंसर क्या होगा? 6 into 7 42, minus of minus 4, so answer will be 46. Next calculate A12. A12 क्या होगा? 4 5 minus 2 7. आपको A ट्रांसपोज में से A लेना है. So A ट्रांसपोज में से मैं अगर डिलीट करता हूँ कोई भी एंट्री, that is -1. yes. So -1, then 2, then 3, 7. So answer will be -7 -6, which is equal to -13 ना? Yes. Then A13 क्या निकालेंगे? A13 is equal to, tell me the matrix. -1 3 6 -2. -1 3 6 -2. So what you have to do? -2. You have to delete first row and third column, and whatever is remaining you have to take the matrix का determinant. -1 into -2 is +2, minus 6 into 3 is 18, 2 minus 18 is minus -16. 6. So you can calculate this further, A21, A22, A23. Finally you can write the matrix. जब adjoint of A लिखते हैं तो क्या करेंगे? Since we have already taken the transpose, you can directly return the matrix. First का साइन जो है 46 as it is रहेगा. Second का साइन जो है -13, which will change to +13. Next, this is -16 as it is रहेगा. So what is the sign convention? Sign convention is like this: plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. So how this plus minus sign is determined? Who is there? Akash, please mute your mic. Okay, so this is the sign convention you will see. Whenever A11, 1 plus 1 is even number है तो प्लस साइन लेना है. A12, 1 plus 2 is 3, 3 is क्या है? ऑड नंबर, तो निगेटिव साइन. 1 plus 3 4, 4 is even number, so पॉजिटिव साइन. यहाँ पे क्या है? A21 मतलब 2 plus 1 3, निगेटिव. ऑड नंबर आया सम का तो आपको निगेटिव लेना है, इवन नंबर आया तो पॉजिटिव लेना है. अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो, मतलब अगर A11 डायरेक्ट निकालोगे तो क्या आएगा? 6 2 -2 7, सेम आएगा 46. ओके, A12 करोगे तो क्या आएगा? ये जो 13 है उसके जगह पे ये वाला एंट्री मिलेगा, A21 वाला एंट्री मिलेगा. मतलब क्या है? पहले आप
माइनर निकालो बाद में ट्रांसपोज लो, या फिर हमने क्या किया था, पहले ही ट्रांसपोज लिया था बाद में माइनर लिया था. सो दोनों तरीके से आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है. ओके, सो दिस इज हाउ यू कंप्यूट एडजॉइंट ऑफ ए. ओके, तो यहाँ पे सब मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं. Okay, let's come back to the properties of a matrix. We will see this adjoint again. We will revise when we see the inverse of a matrix. But तब तक के लिए आप ये ध्यान में रखना, पहले आपको ट्रांसपोज निकालना है, फिर आपको माइनस निकालने हैं. Okay. What are the properties of a matrix? First property is transpose of a transpose is original matrix. What does it mean? If I take A transpose, ए का 2 बार ट्रांसपोज निकाला तो मुझे सेम मैट्रिक्स वापस मिलेगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो का कॉलम बन जाता है. अगर फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो कॉलम का फिर से रो बन जाएगा. सो विल गेट द मैट्रिक्स इज बैक. ओके, सो लेट अस कम बैक टू. ओके, सो एडमिटेड. नाउ ट्रांसपोज ऑफ अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का जब ट्रांसपोज निकालते हो तो उसका ट्रांसपोज में ऑर्डर रिवर्स होता है. व्हाट डज इट मीन? ए बी ट्रांसपोज इज सेम एज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. ओके, अभी आप हमने देखा था कि मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. नॉट कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? ए बी इज नॉट सेम एज बी ए. देयरफॉर ये जो ऑर्डर है वो मैटर करता है. सो फर्स्ट जब हम मैट्रिक्स का ऑर्डर का ट्रांसपोज लेते हैं तो हम लोग को रिवर्स ऑर्डर में लेना है. ओके, यू कैन वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी बाय टेकिंग ए एंड बी एज अ मैट्रिक्स. ए को 3/2 मैट्रिक्स लो, बी को 2/3 मैट्रिक्स लो, एंड देन यू कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन. चेक दैट ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं आएगा सेम. इट इज बी ट्रांसपोज पहले लेना है, बाद में ए ट्रांसपोज लेना है. ओके, नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो व्हेन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन राइट ए एज ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज. ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है वो क्या होगा? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज. एंड जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अगर डायगोनल पे हम लोग मिरर रखते हैं तो दोनों तरफ का इमेज सेम होगा. अगर हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जब डायगोनल में मिरर रखते हैं तो दोनों तरफ का एंट्री जो है साइन में चेंज होगा. सो लेट अस टेक दिस एग्जांपल. लेट मी ऐड वन पेज. ठीक है, तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. 2/2 में a इज इक्वल टू से 1 4 7 0 1 -2 0 2 3. So my matrix A, is it symmetric matrix? Anyone can answer? Is it symmetric? No, sir. No, sir. Is it skew symmetric? Yes. नो, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 4 है यहाँ पे. A11 A12 क्या है? 4 है. A21 क्या है? 0 है. सिमेट्रिक है ना, सो सिमेट्रिक है तो क्या है? So ये स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है. So you can see that here the mirror image are not same as well as reverse in the sign. Similarly ये वाला इमेज भी इससे मैच नहीं करता है 7 से. So ये ना तो सिमेट्रिक है ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है. So पहले हम लोग को क्या बोला है उन्होंने? You have to write A is equal to half of A plus
A transpose plus half of A minus A transpose, राइट? तो पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज A प्लस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है? सो पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? A ट्रांसपोज. A ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग? रोज विल बिकम कॉलम्स, कॉलम्स विल बिकम रोज. So 147 will be first row will become first column, 0, 0, 1 minus 2. 1, and lastly 0, 2, 3. Okay. So ये हमने A ट्रांसपोज निकाला. What is A plus A ट्रांसपोज? कैसे ऐड करते हैं? एलिमेंट बाय एलिमेंट. Add it. This first element will be added to the first element. Second element will be added to the second element. Calculate करो. 4. 4, This is 7, 7. Then 4 4, plus 0, 4, 4. 0. 2, Third 0, 7. 7, 0, 0. Mhm. No, 0, 6. Okay. Now see this, we calculated the A plus A transpose. Can you see that this matrix is become a symmetric matrix? अभी देखो Yes, sir. mirror image same है. yes, Okay. So you can see that this matrix is symmetric matrix. Similarly, calculate A minus A transpose. What is A minus A transpose? Subtract करो. 0, 4 minus 0 is 4. 4, 7 7. minus 7. Then 0 minus 4 is minus 4. 1 minus 1 0. Next is minus 2 minus 2. क्या आएगा? minus 4. Then 0. क्या आएगा? 0 minus 7. Minus 7. You have to subtract this entry. 0 minus 7. 2 minus minus 2. 2 plus 2 is 4. Then 3 minus 3, 0. Is this correct? Sorry, my line is not straight. Okay. So ये मैट्रिक्स जो मिला है A माइनस A ट्रांसपोज, ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक. सो एनी मैट्रिक्स, वो सिमेट्रिक हो ना स्क्यू सिमेट्रिक हो, उसको भी हम लोग जब लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एडिशन ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक. सो फाइनली आपको आंसर कैसे लिखना है? A is equal to half of whatever is the first matrix, you have to copy it down, plus half of what is the second matrix, copy it down. When you add this together, you will get the original matrix back. 2 4 7 4 2 0 and lastly 7 0 6. और A माइनस A ट्रांसपोज का वैल्यू क्या है? 0 4, 4 7. minus 4 0 minus 4 and lastly minus 7 4 0. So you can add this first part is called as a symmetric matrix, second part is skew symmetric matrix. So ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है? सिमेट्रिक. और ये वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक. Okay, so we got the result. Any matrix can be written as addition of symmetric plus skew symmetric matrix. Okay,
So let me give you one more thing where it is notes. ओके यहाँ पे असाइनमेंट में मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं डाला है उस टाइप का, बट देयर आर सम क्वेश्चंस इन सम ऑफ द एग्जाम आई हैव सीन based on this property, that is write a square matrix as a sum of symmetric plus q symmetric matrix. तो आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसको आपको ये फॉर्म में लिखना है, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक्स. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. जो प्रॉपर्टी ट्रांसपोज का है वही प्रॉपर्टी इनवर्स का भी है. इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या है? ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. सो जब भी हम लोग इनवर्स लेते हैं या ट्रांसपोज लेते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो रिवर्स हो जाता है. ओके ओके. Yes. द ट्रांसपोज एंड इनवर्स वो कम्यूटेटिव है. मतलब क्या है? अगर पहले आपने इनवर्स किया, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे पहले क्या किया है? इनवर्स किया है, और इनवर्स करने के बाद उसका ट्रांसपोज लिया है. ओके, सेम एज अगर मैं पहले ट्रांसपोज लेता और बाद में इनवर्स करता. अंडरस्टूड? द ट्रांसपोज एंड इनवर्स आर कम्यूटेटिव. व्हाट डज इट मीन? पहले आप इनवर्स करो बाद में ट्रांसपोज लो, या फिर पहले ट्रांसपोज लो बाद में इनवर्स करो, दोनों आंसर क्या है? सेम आएगा. ओके, दिस इज अगेन अ प्रॉपर्टी. ये जो प्रॉपर्टीज है वो वन लाइनर के लिए मतलब जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं उसमें Yes, sir. पूछते Yes, हैं. sir. ओके, नेक्स्ट क्या है? डिटर्मिनेंट. प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट इज सेम एज डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट. ओके, सो मैट्रिक्स ए बी, if you take the determinant, it is same as determinant of A into determinant of B. So note that ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही अप्लाई होता है डिटर्मिनेंट. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चंस आते हैं. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. अभी तक हमने इनवर्स कैसे निकालते हैं नहीं पढ़ा है, राइट? बट अगर आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इनवर्स निकालने का सबसे सिंपल तरीका है उसका ट्रांसपोज लेना. So if matrix transpose is same as matrix inverse, then the matrix is called as orthogonal matrix. So orthogonal matrix है या नहीं है कैसे पहचानना है? कि अगर आपका जो इनवर्स है एंड ट्रांसपोज है दोनों सेम है तो मैट्रिक्स बोलते हैं ऑर्थोगोनल. सो लेट अस टेक वन क्वेश्चन, whether I have done or not, let us see. हमने 6 वाला किया ना? यस. Yes, sir. 7 इनवर्स नो. ठीक है. सो वो असाइनमेंट में से एक क्वेश्चन उठाते हैं. So this question I am just copied down. नाही कोण म्हणता? यहाँ पे क्यों नहीं आया वो? कंट्रोल सी, कंट्रोल. ठीक है. ओके, शो दैट फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. सो मैट्रिक्स क्या दिया है? A is equal to 1 by root 2 in 0 minus 1 by root 2. Next
0 1 0 एंड थर्ड रो क्या है 1/√2 0 1/√2. सो ये 3/3 का मैट्रिक्स है. ओके, what you have to check whether it is orthogonal or not. Let me check whether someone is admit. Okay, there is one student. ठीक है. सो ये बीच बीच में आते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है. ठीक है. What is A transpose? Tell me the transpose. First row will become first column. 1/√2 1/√2 0. 0 1/√2. 1/√2. Next 0 1 0. Second row will become second column. Third row will Minus become third 1/√2. column. थर्ड रो क्या है 1/√2 0 1/√2. सो कॉलम क्या होगा 1/√2 0 1/√2. So check that whether my A and A transpose are correct or not. Yes. Now what you have to do, you have to just find out the product A into A transpose, या फिर A transpose into A किया तो भी चलेगा. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. What is the first row into first column? 1/√2 into 1/√2. It is just 1/2, right? 1/√2 into 1/√2. Square root sign will vanish. Plus 0 into 0 0. Again, what is minus 1/√2 into minus 1/√2? Minus minus will become plus, right? Plus root. 1/2. ओके, ये क्या किया हमने फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम. नेक्स्ट क्या स्टेप होता है फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम. करो फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम. 1/√2 into 0, you will get answer 1/2. 0 plus 0. 0 into 1. हम क्या करें फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम एंड देन थर्ड वाला minus 1/√2 into 0 again 0. 0, right? नेक्स्ट क्या है फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम. करो फास्ट, एवरीवन कैन डू इट. 1/2 plus 0. 0 into 0 0 minus 1/√2 into plus 1/√2. It will be minus sign, minus into plus minus 1/2. Next second row into first column 0 plus 0 plus 0 plus 0, right? When you मतलब प्रैक्टिस जब हो जाएगा आप एकदम फास्ट करने लगोगे. It is 0 plus 1 plus 0. Why it is so? 0 into 0 0, 1 into 1 1, 0 into 0 0. Next second row into first column क्या आएगा 0 into 0 0 0. तीनों भी 0 आएगा, राइट? 0 plus 0 plus 0. Next third row into first column 1/2 plus 0 plus सॉरी प्लस में माइनस आएगा ये minus 1/2. नेक्स्ट ये क्या आएगा सेकेंड कॉलम 0 plus 0 plus 0, राइट? 0 plus 0 plus 0. Then third row into third column 1/√2 into 1/√2, again 1/2 plus 0 into 0 0 plus. Okay, calculate this product. फाइनल आंसर लिखो क्या आएगा 1/2 plus 1/2 1. Second 0 plus 0 plus 0 0. Third entry 1/2 minus 1/2 0. This entry 0 0 plus 1 1, 0 plus 0 plus 0 0. Next this entry is 1/2 minus 1/2 0 0, and last entry 1/2 plus 1/2
0. So value क्या आएगा? Identity matrix. So I am writing over here in the bracket, since A into A transpose is equal to identity, therefore A is orthogonal. So जब A into A transpose क्या होता है? आइडेंटिटी होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? A into A transpose is आइडेंटिटी होता है तो ऑर्थोगोनल है. अगर A into A transpose आइडेंटिटी नहीं होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज नॉट ऑर्थोगोनल. सो अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, व्हाट इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल. सो जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही मैट्रिक्स का इनवर्स होता है, मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? A into A इनवर्स शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इट इज कॉल्ड एज इनवर्स. सो ट्रांसपोज एंड इनवर्स सेम है तो आपको क्या मिलेगा? मैट्रिक्स क्या है? ऑर्थोगोनल है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू चेक, ये मैं नेक्स्ट टाइम करेक्ट करूंगा, एक ही इसमें है. A into A transpose should be identity matrix, then the matrix is called orthogonal matrix. ठीक है? Okay. So this completes the properties of a matrix. Let's revise once fast में revise कर लेते हैं. डबल ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स होता है. सेकेंड, जब प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेते हैं तो ऑर्डर रिवर्स होता है. थर्ड प्रॉपर्टी, एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंट एज सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो वो कैसे करना है हमने देखा. फोर्थ प्रॉपर्टी, जो ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है वही है, दैट इज अगर हमने प्रोडक्ट का इनवर्स लिया तो मैट्रिक्स का इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में. ट्रांसपोज एंड इनवर्स आर कम्यूटेटिव, दैट इज अगर मैंने पहले इनवर्स लिया बाद में ट्रांसपोज लिया, या फिर पहले ट्रांसपोज लिया बाद में इनवर्स लिया, तो भी मुझे सेम ही आंसर मिलेगा. देन डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, दैट इज प्रोडक्ट ए बी, पहले प्रोडक्ट किया फिर डिटर्मिनेंट लिया, या फिर पहले डिटर्मिनेंट लिया बाद में प्रोडक्ट किया, तो भी मुझे आंसर सेम मिलने वाला है. एंड लास्ट जो हमने देखा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दैट इज ट्रांसपोज एंड इनवर्स जिसमें सेम होता है, या फिर A इंटू A ट्रांसपोज आइडेंटिटी होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल. वी हैव ऑलरेडी सीन द मेथड्स इन सेम 2. जब हमने गॉसियन जॉर्डन मेथड पढ़ा था, देन सीडेल गॉस सीडेल मेथड पढ़ा था, तब हमने ये ऑलरेडी कर चुके हैं. सो लेट अस रिवाइज दिस कंसेप्ट वेरी केयरफुली. That is called as elementary transformation. So consider the set of equation. तीन equations दिए हैं, तीन variables है x, y, z. So this system को मैं बोलूँगा 1.1, और हम लोग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो यही सिस्टम पे करेंगे, सिस्टम 1.1. ओके, सो अगर हम लोग इसको मैट्रिक्स में डिनोट करेंगे तो क्या होगा? मैट्रिक्स कैसे बनेगा? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. फर्स्ट 1 1 1, कोएफिशिएंट ऑफ x 4 2 3 1 13 3 minus 2 4, and राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स में 6. सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू मैट्राइसेस. सो आपको ये जो मैट्रिक्स मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर द गिवन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो आपको कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड है? फर्स्ट, इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और इंटरचेंजिंग एनी टू इक्वेशन. सो व्हेन यू परफॉर्म दिस ऑपरेशन बाय इंटरचेंजिंग फर्स्ट इक्वेशन विद सेकेंड, व्हाट डज यू मीन? यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन था एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या है? सेकेंड इक्वेशन है, और जो सेकेंड इक्वेशन था वो क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है. सेम हम लोग कैसे डिनोट करेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में? R1 इंटरचेंज विथ R2. तो जब हम लोग R1 इंटरचेंज विथ R2 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? दिस मैट्रिक्स, इंटरचेंजिंग फर्स्ट इक्वेशन विद द सेकेंड इक्वेशन. व्हाट परफॉर्म और क्या करते हैं हम लोग?
multiply any of the equation with the constant. Non-zero constant is important here. So कोई भी मैट्रिक्स में हम लोग को जब इक्वेशन को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग को हमेशा क्या करना है, नॉन जीरो स्केलर से ही मल्टीप्लाई करना है. जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जीरो हो जाएगा, फिर उसका कोई यूज नहीं है. इसलिए whenever we multiply by any constant we will multiply by constant which is equal to not equal to 0. So उन्होंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को क्या किया, फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड इक्वेशन को उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया. सो पहला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 8. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 13, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो. ओरिजिनल इक्वेशन को करना है हमेशा, ये जो इक्वेशन दिया है 1.1 में उसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा. ओके, सिमिलर चेंज आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में भी कर सकते हो. फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, सिमिलरली सेकंड रो को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है. जो भी ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में परफॉर्म होगा वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में भी परफॉर्म होगा. ओके, नेक्स्ट क्या है, multiplying one or more equation by scalar and adding or subtracting to each other. So for example, multiply first equation by 3 and subtract 1 from 3. So what does this operation is known as, R3 interchange to R3 minus 3 times R1. So ये जब ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा. ओके, so these are the basic concept. Only 3 operations are there. What are the 3 options? Interchange of any 2 rows. Second, multiply any row with the non-zero scalar. And third, कोई भी मैट्रिक्स को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको कोई भी रो में से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. सो जो रो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वही कॉलम ऑपरेशन भी परफॉर्म होते हैं. मतलब इंटरचेंज ऑफ 2 कॉलम्स, multiply any column with the constant, or multiply one column with the constant and add or subtract from the another column. So that kind of operation is allowed in row transformation और column transformation. But जब भी हम लोग इक्वेशन का सिस्टम सॉल्व करते हैं तो हम लोग we will stick to only row operation. Okay, ये भी हमने देखा था when we add this राइट हैंड साइड इक्वेशन, वो भी जो भी राइट हैंड साइड है वो अगर मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका जो भी राइट हैंड साइड है वो एज अ कॉलम मैट्रिक्स में ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल आपका इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, ये वाला इक्वेशन. सो 1 1 1 एंड ये जो राइट हैंड साइड का 4 है वो भी ऐड किया. तो आपको देखो यहाँ पे 1 1 1 एंड राइट साइड पे क्या ऐड किया, 4. ओके, सो जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मैट्रिक्स पे वो हम लोग इस ऑर्डर में मैट्रिक्स में परफॉर्म करेंगे. ठीक है, सो ये सब उसका डिटेलिंग है. इंटरचेंज ith रो विद jth रो we denoted by small notation है rij, बट हम लोग हमेशा लिखते हैं ri interchange with rj. ओके, ठीक है. ओके, Yes. हाँ, बीच बीच में बोलते रहो नहीं तो मुझे लगेगा कि आप चले गए. ठीक है, सो ये नोट्स है, बट आप हम लोग हमेशा सिंपल नोटेशन यूज करेंगे. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ये उन्होंने एकदम सिंपल, मतलब RIJ मतलब क्या, RI इंटरचेंज विथ RJ. सिमिलरली CIJ मतलब क्या, CI इंटरचेंज विथ CJ. देन इन्होंने ये भी सिंपल नोटेशन यूज किया है RIK, मतलब ith रो को k से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर CIK मतलब क्या है, ith कॉलम को k से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटेशन यूज किया है. वी नीड नॉट यूज दिस नोटेशन, वॉट एवर वी यूज टिल नाउ हम वही कांस्टेंट रखेंगे. ठीक है,
सो जब भी आपको मैट्रिक्स को सॉल्व करना रहता है तो हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स क्या करने हैं, हमको जीरो करने हैं। सो ऑल द एलिमेंट्स विच आर बिलो द डायगोनल वी शुड कन्वर्ट इट इनटू जीरो, एंड मैट्रिक्स को क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। सो एग्जांपल लिया उन्होंने। पहले क्या है, सपोज ये आपका सिस्टम है 2x + 4y - 3z = 1, 4x - 3y + 2z = 4, 3x + 2y - z = 4। सो इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, राइट डाउन द कोएफिशिएंट 2, 4 - 3, ये फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट है। सिंस राइट हैंड साइड भी सेम मैट्रिक्स में लिखना है अपने को, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे आएगा। देन नेक्स्ट 4 राइट हैंड साइड का एलिमेंट यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। मतलब हमने क्या किया, राइट हैंड साइड का जो मैट्रिक्स है उसको सेम मैट्रिक्स में यूटिलाइज किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेशन क्या है, R1 - R3। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को कैसे कन्वर्ट करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। तो ये वाला जो एंट्री है 2, उसको क्या करना है, 1 बनाना है। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या हो सकता है, 1/2 × R1, ये भी तरीका हो सकता है। ओके, बट आप कोई भी वैलिड ऑपरेशन यूज करके ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट ऑपरेशन क्या लिया है, R1 - R3, क्योंकि अगर हम लोग 1/2 करते तो ये -3/2 होता, राइट हैंड साइड पे 1/2 होता, तो ये हमेशा हम लोग को यूज करना पड़ता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता प्रोसेस। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप कोई और ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो वो गलत है। ओके, सो वी विल ऑलवेज कीप द सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। सो उन्होंने फर्स्ट क्या किया, R1 - R3 किया, 2 - 1, 2 - 3 is -1, 4 - 2, 2, then -3 माइनस ऑफ -1, सो ये +1 हो जाएगा, -3 + 1 -2। देन लास्टली R1 - R3 राइट हैंड साइड पे भी परफॉर्म करना है आपको, तो 1 - 4 is -3। So this is how this operation is performed, R1 interchange to R1 - R3। So ये कौन से टाइप का ऑपरेशन है, थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज मल्टीप्लाई एनी रो विद द स्केलर एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम एनी अदर रो। ओके, अभी नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, R1 इंटरचेंज विथ -R1, मतलब इसको हम लोग को साइन चेंज करना है सिर्फ। तो -1 का 1 बन जाएगा, 2 यहाँ पे पॉजिटिव है तो निगेटिव बन जाएगा, -2 है तो पॉजिटिव 2 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 बन जाएगा। So why we do this operation, because we want to convert this first element is equal to 1। Then नेक्स्ट क्या है, अपने को ये 4 और 3 को 0 करना है। ठीक है, तो हम कौन से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, पहले जो हम लोग ये 1 किया तो इससे इसका यूटिलाइजेशन करके, इस 1 का यूटिलाइजेशन करके ये जो दो एलिमेंट है 4 और 3 उसको 0 बनाना है। वी वांट दिस टू एलिमेंट्स टू बी इक्वल टू 0। सो ऑपरेशन क्या है, R2 is equal to R2 minus 4 times R1, R3 इंटरचेंज विथ R3 minus 3 times R1। ये कैसे लिया, 4 कहाँ से उठाया, ये यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 4 है इसलिए यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट 3 है इसलिए 3 times R1 सब्ट्रैक्ट किया। फाइनली यू विल गेट द एंट्रीज इक्वल टू 0 0। सो कैसे मिलेगा, दिस R2 4 minus 4 times 1 दैट इज 0। नेक्स्ट क्या है, -3 - 4 times -2, कैलकुलेट करो, पेन एंड पेंसिल है आपके पास। -3 - 4 into -2, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो -3 + 8, -3 + 8 क्या होगा, +5। सिमिलरली कैलकुलेट R2 - 4 times R1,
-6. ओके, सिमिलरली 4 माइनस 4 टाइम्स 3, 4 माइनस 12 क्या होगा? -8. सो ये ऑपरेशन परफॉर्म करो तो आपको समझ में आएगा. सिमिलरली R3 इंटरचेंज विथ 3 टाइम्स R1. व्हेन यू परफॉर्म यू विल गेट दिस एंट्रीज. ओके, हर एक एलिमेंट जो है थर्ड रो का, उसमें से आपको 3 टाइम्स फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, नेक्स्ट अभी अपने को क्या करना है? जो ये एंट्री है सेकेंड एंट्री, इसको 1 करना है. तो इसके लिए क्या किया? 1/5 टाइम्स R2. तो ये बहुत सिंपल है. सबको सेकेंड रो को 5 से डिवाइड करना है. सो फर्स्ट 0/5 इज 0, 5/5 इज 1, -6/5 यहाँ पे -8/5. सो जब भी हम लोग ये टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो जब अपने पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता तब हम लोग ये परफॉर्म करेंगे, किसी रो को डिवाइड करना या फिर मल्टीप्लाई विथ 1/5, 1/7. ऐसे टाइप के ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं तो हम लोग को फ्रैक्शन एंट्री मिलते हैं. और जब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. नोट डाउन दैट यू विल हैव टू यूज कैलकुलेटर इन द एग्जाम. आपको अलाउड है कैलकुलेटर. ओके, सो ये सब चीजें आप फास्ट कर सकते हो. ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? आपको ये जो एंट्री है 8 वाला, इसको 0 बनाना है. सो इसको 0 बनाने के लिए ये वाला जो एंट्री है A22 उसको यूज करेंगे. ठीक है, सो मेक इट 0 बाय चेंजिंग द ऑपरेशन. क्या होगा? R3 माइनस 8 टाइम्स R2. सो 8 माइनस 8 0, -7 माइनस 8 टाइम्स 6/5. सो इसको परफॉर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? सो जब हम लोग ये 1/5 करते हैं तो आपका जो मैट्रिक्स है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है. -7 माइनस 8 मतलब -8 इंटू 6 इज 48. सो -7 माइनस 48 अपॉन 5. सो 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का करके देखो, यू विल गेट दैट आंसर इज -39.5. सो व्हेन यू परफॉर्म you will get the matrix into upper triangular matrix. So ये जो फाइनल वैल्यू हमको मिला है वो क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो अगेन रीसब्स्टिट्यूट द इक्वेशन. मतलब पहला इक्वेशन क्या बनेगा? x -2y + 2z इज इक्वल टू 3, y -6/5 z इज इक्वल टू -8/5, एंड थर्ड इक्वेशन 0 0 13/5 इज इक्वल टू 13/5 z is equal to 39/5. So solve it completely. फर्स्टली ये वाला इक्वेशन सॉल्व करो, क्या होगा? z is equal to 3 मिलेगा, राइट? फिर z is equal to 3 ये इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करो तो y का वैल्यू मिलेगा. y is equal to 2 एंड z is equal to 3. ये जो दो वैल्यू मिला वो फर्स्ट इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करोगे तो x का वैल्यू मिलेगा. सो फाइनल आंसर क्या है आपका? x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to 3. Okay, so next time, since I am not able to complete this particular in the same lecture, so what next time we will do, we will solve any one of these 3 equation. Okay, so that आज जो मैंने समझाया वो एकदम ये था, एब्स्ट्रैक्ट था ये मेथड से. ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल सॉल्व ऑन द बोर्ड. सो ये जो बोर्ड है या अभी सॉल्व करें? व्हाट डू यू थिंक? और इन द नेक्स्ट लेक्चर एनीवन? यस सर. अभी सॉल्व करें या नेक्स्ट लेक्चर में? अभी टाइम है सर, अभी 7 मिनट्स से सर अभी हो सकता है. हाँ ठीक है, चलेगा, अभी सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो लेट अस टेक ये वाला सॉल्व करते हैं.
check whether following system are consistent or not and give the solution if they are consistent. ठीक है, ये थोड़ा एडवांस है, मैं बुक में से ही सॉल्व करता हूँ क्योंकि इसके लिए मुझे रैंक का कंसेप्ट आपको सिखाना पड़ेगा कंसिस्टेंसी के लिए. सो लेट अस सॉल्व फ्रॉम बुक ओनली. से दिस ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होगा या नहीं पता नहीं. I need one more page. ठीक है, so let us try this question. इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1. Next 2 2 2 3 3 3. 3 Next 1 minus 1 3 equal to 5. Okay. So what is the first operation? आपका यहाँ पे एंट्री ऑलरेडी 1 है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. अपने को क्या करना है, फर्स्ट ये वाला एंट्री जो है, आई विल जस्ट हाईलाइट इट. ये जो एंट्री है फर्स्ट एंट्री, इट शुड बी इक्वल टू 1. दैट इज योर फर्स्ट स्टेप. अगर वो 1 नहीं है तो आपको आगे का परफॉर्म करना पड़ेगा. अगर मेरा ये सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन होता, सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन चेंज होता तो मैं क्या करता, R1 इंटरचेंज विथ R2, देन आई विल गेट द फर्स्ट एंट्री एज 1. बट यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो मुझे क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये जो एंट्री है और ये जो एंट्री है इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है. तो ये 0 कैसे बनाएंगे, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन आई कैन परफॉर्म टू मेक इट 0? ओके, सो R2 को 0 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, R2 माइनस R2 का ये एंट्री क्या है, 2 है. सो आई विल टेक 2 टाइम्स R1 कॉमा, नेक्स्ट एंट्री क्या है, R3 माइनस यहाँ पे क्या है 1 है, सो 1 टाइम्स R1. ओके, सो परफॉर्म करने के बाद मुझे मैट्रिक्स क्या मिलेगा, सिंस मैं फर्स्ट रो से ऑपरेट कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी. इट इज क्या है, 1 2 2 1. अभी यहाँ पे ये 2 है और ये 1 है, सो R2 माइनस 2 टाइम्स R1, सो 2 माइनस 2 यू विल गेट 0. नेक्स्ट एंट्री क्या है, ये क्या है 2, 2 माइनस 2 टाइम्स 2, सो 2 माइनस 2 टाइम्स 2 मैं क्या यहाँ पे लिखता हूँ रफ के लिए, 2 टाइम्स दिस एंट्री इज 2. सो कैसे किया मैंने, 2 माइनस दिस 2 माइनस 2 टाइम्स 2 -2. तो आंसर क्या आएगा मुझे, -2 आएगा, राइट. तो ये रफ वर्क मैं डिलीट कर देता हूँ. 2 टाइम्स -2 इज -2. सो ये सब जो एंट्रीज है वो रफ में करना है और फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना है. देन अगेन 3 माइनस 2 टाइम्स 2 क्या आएगा, 3 माइनस 4 -1, 3 माइनस 4, राइट. अभी नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 2 क्या आएगा, यस एनीवन कैन टेल, 3 माइनस 2 इज 1. नेक्स्ट R3 माइनस R1, दैट मीन्स थर्ड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करना है. 1 माइनस 1 0,
अभी -1 -2 times 2 that is -1 -4 that is minus। प्लीज म्यूट योर माइक, किसका चालू है? ओके हाँ, देन 3 minus 2 3 minus सॉरी ये मैंने गलत किया, आई विल जस्ट इरेज इट। ओके R3 minus R1 -1 -2 क्या आएगा आंसर? -3 -3 राइट। नेक्स्ट क्या है? 3 minus 2 आंसर इज 1 और यहाँ पे क्या है? 5 minus 1 4 ओके। So this is completed. Now next is I will come over here. Next operation मुझे क्या करना है? ये जो एंट्री है इसको 1 बनाना है। कौन सा ऑपरेशन कर सकता हूँ मैं इसको 1 बनाने के लिए? आइदर मैं 1/2 कर सकता हूँ या फिर मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, सो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा। सो व्हाट आई विल डू, R2 सॉरी R2 माइनस R3। अगेन मैं कौन से टाइप का ऑपरेशन कर रहा हूँ? थर्ड टाइप का ऑपरेशन कर रहा हूँ। करो R2 माइनस R3। फर्स्ट रो इंटरचेंज नहीं होगा, वही रहेगा 1 2 2 राइट हैंड साइड पे 1। नेक्स्ट 0 minus 0 0 -2 माइनस ऑफ -3 सो 3 minus 2 होगा विच इज 1। अभी क्या होगा? -1 -1 -2 यहाँ पे क्या होगा? 1 -4 -3। नेक्स्ट एंट्री 0 3 -3 1 और ये क्या होगा? 4। सो जब हम R2 माइनस R3 करेंगे तो उसका चेंज जो रहेगा वो R2 में चला जाएगा, जो भी फर्स्ट ऑपरेशन होता है, फर्स्ट एंट्री होता है उसमें चला जाता है, राइट? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है मुझे? आई वॉन्ट दिस एंट्री टू बी इक्वल टू 0। ये जो -3 है उसको 0 बनाना है। सो उसको कैसे बना सकता हूं मैं? आई विल मेक R3 प्लस 3 times R2। Why it is 3 times R2? क्योंकि मुझे यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 1 है, सो अगर मैं इसमें 3 times R2 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, राइट? सो कैलकुलेट दिस R3 प्लस 3 times R2। ओके ये क्या रहेगा? 1 2 2 1। R3 में चेंज करेंगे सिर्फ 0 1 -2 -3 और लास्टली क्या है? 0 -0 0। R3 प्लस -3 प्लस 3 0। अभी ये क्या है? 1 -6 1 -6 क्या आएगा? -5। अभी यहाँ पे 4 -9 क्योंकि -3 है ना यहाँ पे, 4 -9 क्या आएगा? -5 4 -9 इज -5, करेक्ट? सो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। फाइनली आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पे? यही पे करें क्या सॉल्व? ठीक है, यहाँ पे ही करते हैं सॉल्व। सो फाइनली आपका इक्वेशन में कन्वर्ट करो क्योंकि ये डिजायर फॉर्म है। क्या आएगा? x प्लस 2y प्लस प्लस 2z इज इक्वल टू 1
Next, y minus 2z is equal to minus 3, and third equation minus 5 Yeah. Z. रुको एक डिलीट कर देता हूँ. minus 5 z is equal to minus 5. Minus 5. So थर्ड इक्वेशन से मुझे क्या मिलेगा? z is equal to minus 5 divided by minus 5 1. 1. So z is equal to 1 मिल गया मुझे यहाँ पे. ठीक है, z is equal to 1 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? y minus 2 times 1 is equal to minus 3. So y is equal to क्या मिलेगा? minus 2. यहाँ पे आके क्या मिलेगा? plus 2. minus 3 plus 2 which is equal to 1. Minus 1. right? Minus 1. हाँ माइनस. अब ये सब्ट्रैक्ट करो फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस 2 टाइम्स माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स 1 इक्वल टू 1. सो ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा. डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 1. सो रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करके आपको आंसर मिलेगा. राइट? सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या है? 1 minus 1 1. okay, so this is how you perform the row operation to convert the matrix. मतलब सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो. तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. इसीलिए मैं नया पेज लेता हूँ क्योंकि सेम पेज में कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट होता है इसमें. ठीक है? ओके, सो वील स्टॉप हियर. ठीक. ओके. Bye, sir.